Okay, students, today we will discuss a new concept of determinant which is very important. Okay, that is called properties of determinant. There are 15 to 16 properties. Each property is very important. First property is, you see, the sum of product of the elements of any row or column with their cofactors is equal to determinant of A. So we can write determinant of A in this two way. What is the property? The sum of product of the elements of any row with their cofactors, means which row we will consider the cofactor of that row, elements of that row will be multiplied, cofactors will be multiplied with the elements, then we will take the sum. That sum is always equal to determinant of A. Okay, its explanation. You see the explanation. I have considered a 3 by 3 determinant, 3 row 3 column with double subscript notation. This we have discussed in matrix in the very first second lectures of determinant also. What is the property? That property is, what the property is saying. All of you see, I have written 3 statement. Carefully you see. In the first statement I have taken A11 into C11 plus, बीच में प्लस आएगा, A12 into C12 plus A13 into C13, means I have considered the elements of first row. In the first row we have 3 elements. You see, these are the 3 elements. The elements are multiplied with corresponding cofactor, means A11 का cofactor क्या होगा? C11, we will multiply that too. A12 का cofactor क्या होगा? C12 will multiply that too. A13 का cofactor क्या होगा? C13 will multiply that too. At last we will take the sum. This always gives the value of the determinant. You are getting? Try to catch what I am saying. In this way I can write 6 statements. दूसरा वाला मैंने कैसे लिखा देखो, A13, A23, A33, means these are the elements of I think third column. A13, A23, A33. A13 के साथ क्या मल्टीप्लाइड हुआ है? C13. जो एलिमेंट लोगे उसका ही कोफैक्टर मल्टीप्लाई होगा. जिस रो या फिर जिस कॉलम का तुम एलिमेंट्स लोगे उसी रो या फिर उसी कॉलम का एलिमेंट्स के साथ रेस्पेक्टिव, मीन्स कॉरेस्पॉन्डिंग कोफैक्टर विल बी मल्टीप्लाइड, देन वी विल टेक द सम. A23 के साथ C23, A33 के साथ C33. दैट सम ऑलवेज गिव्स द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट. ठीक है, यू आर गेटिंग? द शॉर्टकट इज हाउ टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट. डिटरमिनेंट कब होगा? जब एलिमेंट का सबस्क्रिप्ट कोफैक्टर का सबस्क्रिप्ट सेम आएगा, कोई भी टर्म में सेम आ रहा है, उसका सम, प्रोडक्ट का सम हमेशा डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ए होगा. क्लियर? सेकेंड प्रॉपर्टी, यू अंडरस्टूड द फर्स्ट प्रॉपर्टी. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज, आई एम रीडिंग द स्टेटमेंट, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम. ऐसी स्टेटमेंट था पहला वाला, पहला प्रॉपर्टी, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम. इसमें क्या हो रहा है? विथ द कोफैक्टर्स ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ सम अदर रो. अदर रो, जिस रो का हम एलिमेंट लेंगे या फिर जिस कॉलम का एलिमेंट लेंगे, हम उसके साथ किसका कोफैक्टर मल्टीप्लाइंग करेंगे? किसी अदर रो का या फिर अदर कॉलम का. जब हम ऐसे करेंगे फिर सम लेंगे, वो सम हमेशा जीरो आएगा. दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. इन एग्जाम जनरली शॉर्ट क्वेश्चंस आर आस्क्ड बेस्ड ऑन दिस. Again I have written the 3 by 3 standard determinant. You read, you see the first statement, A11, A12, A13. पहले एलिमेंट्स को देखो, ये किस रो का या फिर किस कॉलम का देख लो पहले. A11, A12, A13 शायद फर्स्ट रो का. कोफैक्टर का नोटेशन देखो, here we have 1 1, here it is 2 1, they are not same. मतलब definitely cofactors will be the cofactors of some other row. 2 1, 2 2, 2 3, they are the locations of second row I think. A11 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट R2 में क्या होगा? A21. A12 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट A22 होगा R2 में.
A13 का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट R2 में होगा A23। हम क्या कर रहे हैं, ये तीन एलिमेंट के साथ सेकेंड रो का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर ऐड कर रहे हैं, तो वो सम हमेशा 0 आएगा। ऐसे इसको भी देखो, A31, A32, A33, शायद ये थर्ड रो का एलिमेंट्स है, इसके साथ अगेन है मल्टीप्लाइड कोफैक्टर ऑफ विच रो, C21 मीन्स 21 मीन्स सेकेंड रो, C21, C22, C23, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये होगा R2 में, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा R2 में, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये होगा R2 में। वी कैन ऑल्सो कंसिडर R1 ऑल्सो। तो इसे अगर हम करेंगे एलिमेंट ऑफ ए रो इंटू कोफैक्टर ऑफ सम अदर रो, दैट विल बी ऑलवेज 0। जैसे लास्ट वाला देखो, A12, A22, A32, ये शायद सेकेंड कॉलम का एलिमेंट है। इस कॉलम के साथ हम क्या करेंगे, बाकी दो कॉलम बचा है, किसी भी कॉलम का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड अगर करेंगे तो 0 आएगा। वही लिखा है देखो, A12, A22, A32, ये तीन एलिमेंट हो गया। C11 मतलब दिस एलिमेंट का कोफैक्टर, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इस कॉलम में ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा। तो कोफैक्टर्स ऑफ दीज थ्री एलिमेंट्स आर मल्टीप्लाइड विथ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड कॉलम, दैट सम विल बी 0। लेटर आई विल डिस्कस प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दीज टू प्रॉपर्टी। Property 3, what is property 3? This is also very important. Every property is very important. The value of a determinant remains same if its rows and columns are interchanged. मीन्स है कि हम डिटर्मिनेंट लेंगे, उसका वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसका रोज कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे। इंटरचेंज मतलब ट्रांसपोज कर देंगे, तो रिमेन सेम होगा, मतलब वैल्यू सेम आएगा। दैट इज इन अदर वर्ड द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट एंड इट्स ट्रांसपोज आर इक्वल। कोई भी डिटर्मिनेंट का वैल्यू और उसका ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम आएगा। मैथमेटिकली मैंने ऐसे लिखा, एक डिटर्मिनेंट है उसका वैल्यू इक्वल टू ए ट्रांसपोज, उसको ट्रांसपोज करेंगे, वो तो हम मैट्रिक्स में पढ़े हैं, हाउ टू राइट द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, वैसे डिटर्मिनेंट में भी हम ट्रांसपोज करेंगे, वो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। फॉर वेरिफिकेशन आई हैव टेकन ए 2/2 डिटर्मिनेंट। देखो ये 2/2 डिटर्मिनेंट क्या है, 2, 3, 4, 5 सिंपल एलिमेंट्स आई हैव टेकन। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 2 × 5। बी केयरफुल व्हेन वी फाइंड डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए 2/2 डिटर्मिनेंट, पहले इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा 10 माइनस इन दोनों का आएगा 12। 10 - 12 कितना आएगा, -2। बीच में मैंने इक्वल साइन दिया, ये कैसे, ये मैंने क्या लिखा, इसी डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज इधर मैंने कर दिया, मतलब 2, 3 पहले रो में है वो पहले कॉलम में आएगा, 4, 5 सेकेंड रो में है वो सेकेंड कॉलम में आएगा। इसका भी वैल्यू चेक करो, सेम आ रहा है -2, वही लिखा है प्रॉपर्टी 3। कोई भी डिटर्मिनेंट और उस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो दोनों सेम होगा। यू आर गेटिंग, यू कैन वेरीफाई दिस इज ए टास्क फॉर यू। यू रैंडमली सिलेक्ट ए 3/3 डिटर्मिनेंट, उसका वैल्यू फाइंड करो, फिर उसका ट्रांसपोज करके उसका वैल्यू फाइंड करो। यू कैन सी बोथ वैल्यूज विल गिव यू सेम आंसर। ओके।